میں ہمارے جو مرکزی مہمان ہیں حضرت مولانا پروفیسر یحییٰ عباسی صاحب حفظ اللہ تعالی، ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے مخصوص انداز میں ہمارے دلوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرمائیں۔ میرے مرحاد حافظ یحییٰ عباسی صاحب حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا و نذیرا، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول مجتبیٰ کہیے کہ محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول مجتبیٰ کہیے کہ محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، اس کے بعد اور کیا کہیے۔ شریعت کا یہ اصرار ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا یہ اصرار ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ محترم سامعین کرام، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس کا، جنہوں نے پورے پاکستان میں اس خوبصورت مجلسوں کا انعقاد کیا۔ ہمارے ضلع قصور میں خصوصی طور پہ میاں محمد دین شاکر صاحب، ان کی کوشش ہے اور انہی کے ساتھ جن بھائیوں نے بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور توشہ آخرت بنائے۔ ایک بات میں شروع میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں کہ اپنی خطابت کے بلبوتے آپ کی سماعتوں کو کھینچ سکوں، اور نہ ہی بہت بڑا ادیب ہوں کہ خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر سکوں۔ سادی سی گفتگو ہے اور سادے سے الفاظ میں ہے، گنتی کے 25 سے 30 منٹ، اس لیے آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں میرے رب مومنوں پہ ایک بہت بڑے احسان کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ پروفیسر صاحب بھی اسی آیت کی شرح کر رہے تھے۔ آپ مومنوں کے احسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، کبھی عرب کے حالات کو پڑھ کے دیکھیے کہ جب عرب کی سرزمین گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، خانہ خدا بت خانے میں تبدیل ہو چکا تھا، انسانیت مٹ چکی تھی، نہ اخلاقیات تھے، نہ عقائد تھے، نہ ایمانیات تھے، بیٹا باپ کو شوٹ کرتے ہوئے نظر آتا تھا، بھائی بھائی کے گریبان کو چاک کرتے ہوئے نظر آتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوہ ہونے پہ اس کو اندھیری کوٹری میں بند کیا جاتا، وہاں پہ نہ کھانے کو دیا جاتا نہ پینے کو دیا جاتا، وہاں پہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی۔ ایسے اخلاقیات بگڑے ہوئے تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی ان کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل کے بے باک جیسے، کہیں پہ مواشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا دوڑانے میں جھگڑا،
लब जो कहे आने जाने पे झगड़ा, कहीं पे पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। फिर अरहमर राहिमीन को इस तरसती हुई इंसानियत पे रहम आता है। उसने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्मे नबूवत के ताज को पहना के इस कायनात पे भेज दिया। फिर पैगंबर इनकलाब ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया, ऐसा इनकलाब बर्पा किया, जाहिल आलिम बन गए, डाकू रहबर बन गए, इस्तों के लुटेरे इस्तों के रखवाले बन गए, खून के प्यासे बॉडीगार्ड और मुहाफिज बन गए। फिर क्या हुआ? पैगंबर इनकलाब ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया, आपने कायनात की सोचों को बदला, सोचने के अंदाज को बदला, जाविये को बदला, दस्तूर को बदला, कानून को बदला, कल्चर को बदला, तहजीब को बदला, सकाफत को बदला, इंसानों को बदला, बादशाहों को बदला, अमीरों को बदला, गरीबों को बदला, फकीरों को बदला, इंसानों को बदला, इंसानियत को बदला। जिनको चलना नहीं आता था फिर वो चलते जमीन पे थे, कदमों की आहट जन्नत में आया करती थी। खुद ना तेरा पर औरों के हादी बन गए, खुद ना तेरा पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे मोहतरम, वो लोग जिनके अकायद इतने बिगड़े हुए थे, हजरो शजर को रब मानते थे, हत्ता के बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे, हर रोज का नया रब, हर रोज का नया खुदा। फिर वो अकायद में इतने आगे बने, अकायद के अलंबरदार बन गए। देखिए सहीह बुखारी की हदीस है, जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु हो गए, बैतुल्लाह में बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। चलते चलते हजर अस्वद के सामने आते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं, साथ ही अपने अकीदे का इजहार करते हैं। कहा हजर अस्वद, इन्नी आलमु अन्नक हाजरुन, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, ला तजुर्रु वला तनफा, तू नफे नुकसान का मालिक नहीं है। लौला इन्नी राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा युकब्बिरुका मा कब्बलतुका, अगर सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा ना दिया होता तो उमर कभी तुझे बोसा ना देता। और मेरे मोहतरम, बताना क्या चाहता था, देखिए जो हर रोज का नया रब मानते थे, अकीदे में इतने मजबूत। ओ मुसलमानों, एक लम्हे के लिए सोचिए, जो कब्रों के पत्थरों को तबर्रक के तौर पे जिस्मों में मलती हैं, मलंगों से पत्थर को लेके बतौर तबर्रक अपने घरों में रखते हैं, पत्थरों को तबर्रक के तौर पे अंगूठियों के नगीनों में जड़ते हैं। सुनो उमर बिन खत्ताब का अकीदा सुनो, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू। उस पत्थर के बारे में जो जन्नत से आया था, आसमानों से आया था, रब्बे किब्रिया ने भेजा था, उसके बारे में उमर का अकीदा ये है, इन्नी आलमु अन्नक हाजरुन ला तजुर्रु वला तनफा। ओए हजर अस्वद, तू भी नफे नुकसान का मालिक नहीं है, नफे नुकसान का मालिक है तो एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। मुश्किल कुशा एक खुदा, एक खुदा, आज तरवा मुश्किल कुशा। ये है वो अजीम एहसान, मेरे रब ने इसका तज़किरा किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ओ मोमिनो, मैंने अपना नबी भेज के तुम पे एहसान कर दिया है। आइए इसार में देखिए, कुर्बानी में देखिए, कैसी आपने तरबियत की। जंग का मैदान है, सिहाबी खून में लथपथ है, आखिरी लम्हात हैं, सिहाबी को आवाज़ देता है,
यार मुझे पानी पिलाइए। वो भागा भागा मशक उठा के लाता है। पानी जब करीब लाता है, आगे से आवाज आती है पानी। कहता मुझे छोड़िए, पहले मेरे भाई को पिलाइए। आगे उसके पास पहुंचता है। तीसरा सहाबी कहता है यार इसको पानी पिलाने के बाद मुझे भी पिला देना। कहता मुझे छोड़िए, पहले मेरे भाई के पास जाइए। सहाबी भागता भागता उसके पास जाता है। अल्लाह की करनी ऐसी कि उसकी रूह परवाज हो जाती है। वो भाग के दूसरे के पास आता है, वो भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तीसरे के पास आता है, वो भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ओ मेरे मोहतरम, देखिए सहाबा ने असर क्या, सहाबा ने सबक क्या दिया। आखिरी लम्हात हैं, दुनिया से जा रही हैं, खून में लथपथ है, मौत का प्याला पी रही है। बता रहे हैं उम्मतियों ख्याल रखना, हम भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता गए। प्यारे पैगंबर ने हमारी तरबियत इस तरह की है। हमने मौत के जाम पीना पसंद कर लिए हैं, लेकिन अपने भाई को अपने ऊपर तरजीह दी है। ये है इसार, ये है कुर्बानी। खुद ना तेरा पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यही पे बस नहीं, सही बुखारी उठाइए, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन आका की मजलिस में आते हैं। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके शागिर्द अबू हुरैरा को बड़ी भूख लगी है। आपने कहा अबू हुरैरा जाओ मेरे घरों में पता करो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु महबूब अलैहिस्सलाम के घरों से पता करते हैं। उस वक्त मदीने में आपके 9 घर थे। कितने? लेकिन किसी घर में खाना मुयस्सर नहीं था। ये किसका घर है? ये नबियों का सरदार का घर है, ये सरताज रसूल का घर है। वापस आ जाते हैं। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं मिला। आपने मस्जिद नबवी में ऐलान किया मैं युज़ीफ़ु हाज़ा, ओ मेरे सहाबा, मेरे इस मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा? आसमानों का रब उसकी जन्नत में मेहमान नवाजी करेंगे। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सआदत मुझे दीजिए। जनाब अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को लेके घर चले जाते हैं। घर वालों से पूछते हैं महबूब अलैहिस्सलाम का मेहमान है, आज खाने के लिए कुछ है? उम्मे सुलैम फरमाती है सर के ताज, आप पे कुर्बान हो जाऊं, आज तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है। काला वाली ये सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, कोई बात नहीं, आज बच्चों को वैसे ही बहला दो और उनको सुला दो। महबूब अलैहिस्सलाम का मेहमान है, खाना उन्हें खिलाना है। अरब में ये दस्तूर था कि जब तक मेज़बान मेहमान के साथ खाना नहीं खाते थे, मेहमान खाना नहीं खाता था। खाना बिल्कुल थोड़ा और मुख्तसर। कहा कोई बात नहीं, जब मेरे साथ मेहमान बैठ जाएगा, खाना शुरू करेंगे, तुम दिया दुरुस्त करने की बजाय बुझा देना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु खाना सामने है, खाना शुरू कर देते हैं। उम्मे सुलैम ने दिया बुझा दिया। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु खाली हाथ रोटियों की तरफ लेके जाते हैं और खाली हाथ मुंह की तरफ ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। सुबह हुई, महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठे, जैसे ही दोनों पे नजर पड़ी तो मुस्कराई जा रहे हैं, मुस्कराई जा रहे हैं। काबू तला कहा जी जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा रात को क्या किया? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं किया। कहा बता दो। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मेहमान को खाना ही खिलाया है। काबू तला
अभी अभी जिब्रील ने आके बताया है अर्शों का रहमान अर्शों पे मुस्करा रहा है और मोहम्मद फर्शों पे मुस्करा रहा है। तुम्हारे आने से पहले ही अल्लाह ने कुरान को नाजिल कर दिया है, वह युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दीवानों के क्या ही कहने, खुद भी भूखे, बीवी भी भूखी, बच्चे भी भूखे, और तेरे मेहमान को शेर करके खाना खिला दिया। हाय हाय, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। खुद ना तेरा पर औरों के हादी बन गए। ये था इशार। आगे चलिए, सिर्फ इशारे कर रहा हूं, आपने वाक़यात उलमा से सुने हुए हैं। इबादत में देखिए, खुशू खुदू में देखिए, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा इनकिलाब बर्पा किया था, कैसा ज़हनों को बदला था, कैसी तरबियत की थी, कैसे उसूल बनाए थे, कैसे दिलों में राज किया था। जंग के से वापस आ रहे हैं, गज़वा तबूक से वापस आ रहे हैं, रास्ते में पड़ाव डाला है। आपने कहा मेरे सहाबा आज पहरा कौन देगा? जनाब अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। अम्मार बिन यासिर कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। कहा तुम दोनों देगो? जी जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बाद बिन बिशर कहते हैं जनाब अम्बार सारा दिन जंग करते रहे हो, मुश्किलात का सफ़र करके आए हो, थकावट इंतहा दर्जे की है, नींद का गलबा भी है, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, मैं पहरा देता हूँ। पहरा देने के लिए खड़े हो गए, देखा अमन और सुकून है, कहा क्यों ना हो, रात का आखिरी पहर है, अपने रब से हम कलाम ही हो लूँ। वुज़ू किया, 2 रकते शुरू कर ली। दुश्मन ने मौका पाया, तीर मारा, अब्बाद बिन बिशर के जिस्म में पवस्त हो जाता है। यूं तीर निकाला, फेंक डाला। नमाज सुकून से जारी है, अल्लाह से बातें जारी है। दूसरा तीर आता है, जिस्म में पवस्त हो जाता है, नमाज में कुछ खलल नहीं। तीसरा तीर आता है, जिस्म में पवस्त हो जाता है, खून के फवारे अम्मार बिन यासिर पे लगते हैं। वो घबरा के उठते हैं, उठ के देखते हैं अब्बाद की ये हालत। का अब्बाद जब पहला तीर लगा था तुमने उठाया क्यों नहीं? का अम्मार सूरत काफ की तलावत कर रहा था, मजा इतना आ रहा था, सुकून इतना मिल रहा था, राहत इतनी मिल रही थी, लज्जत इतनी मिल रही थी कि मैंने कहा सूरत काफ की तलावत मुकम्मल कर ही लूं, फिर ही अम्मार को जगाता हूं। अल्लाहु अकबर। ये है इबादत में मजा। उन लोगों को जो मिठास और राहत और लज्जत कुरान की तलावत में मिलती थी, दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलती थी। ये है पैगंबर इनकिलाब का इनकिलाब। ये है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। आगे चलिए, मोहब्बत में देखिए, कबीला बनु दय्यार की औरत है, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कबीला बनु दय्यार की औरत, उसका खामद भी मैदाने कारज़ार में, उसका बाप भी मैदाने कारज़ार में, भाई भी मैदाने कारज़ार में। जंगे ओहद का वाक़या है। वो बीबी को पता चला, अफवाह फैली कि सरताज रुसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन ने शहीद कर दिया है। बीबी भागती हुई हाथ में डंगोरी पकड़ी मैदाने कारज़ार में जा रही है। रास्ते में लोगों ने रोका, बीबी रुकिए, ये जानती है ये कौन है? ये शेर तेरे सर का ताज है, ये तेरा खामिद है। कहा छोड़िए, मैं अपने सर के ताज की खबर लेने नहीं आई, मुझे बताओ आयशा के सरताज के हाल, आयशा के सर के
ताज का हालत क्या है। मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बताओ वो कैसे है। लोगों ने बताया बीबी वो खैरियत से है, सुकून नहीं आया, आगे बढ़ती है, मैदान कारजार में है, कमर झुकी हुई है, हाथ में लाठी है, आगे जाती है। लोगों ने रोका, बीबी जानती हो ये लाश किसकी पड़ी है? ये तेरा बूढ़ा वालिद है जिसने खून पसीने की कमाई से तुम्हें पाला था। कहा छोड़िए, मुझे बताओ फातिमा के बाबा की हालत क्या है। मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बाबा की खबर लेने नहीं आई, मुझे बताओ फातिमा के बाबा की खबर क्या है। थोड़ा सा आगे चलती है, भाई की लाश पड़ी हुई है। लोगों ने रोका, बीबी ये जानती है कौन है? ये तेरा दूध शरीक भाई है जिसने तेरी बड़ी हिफाजतें की थी। कहा नहीं नहीं, मुझे अपने भाई की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या है। लोगों ने बताया बीबी वो खैरियत से है। बीबी आगे बढ़ती है, जैसे ही सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे नजर पड़ती है, तरीक साथ बोलती है, भाई की लाश को देखा था, भाई का गम, बाप का गम, खामद का भंग गम, तो बोलती है कुल्लु युसीबुका बअदका जरनुन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे अनवर को देखने के बाद दुनिया के सारे गम भी भूल बैठी हूं। यह है आका के साथ मोहब्बत, यह है प्यार। खुद ना तेरा पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मैं और आप भी आका से मोहब्बत करते हैं ना, दावे बड़े। आज की इस मजलिस में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका ये दावा ना हो कि आका के साथ हम मोहब्बत करते हैं। यारों मोहब्बत तो सारे करते हैं, इकरार तो सारे करते हैं, इजहार तो सारे करते हैं, नारेबाजी तो सारे लगाते हैं। आका की आमद मरहबा मरहबा बड़े लोगों का नारा है। हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है, बड़े ही लोगों का नारा है। लेकिन तीन चीजों में आके चेक किया जाता है, ये गुफ्तार का गादी है या किरदार का। जो बोल रहा है इसकी रखवाली कितनी को रखता है। अफाल में, अकवाल में, अमर में, नहीं में। एक एक मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। देखिए अफाल में, देखिए सहीह बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई, सहाबा ने भी बनवा ली। एक दिन मजलिस में आपने फतरिह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतरिह अन्नास ख़वातीमहुम, आपने यूं सोने की अंगूठी पकड़ी, फेंक डाली, सहाबा ने भी फेंक डाली। कहा मेरे सहाबा, मुझे तो जिब्रील ने आके बताया था कि ये मर्दों पे हराम है, तुमने क्यों फेंकी? जवाब सुनिए। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब खुद दलील होते हैं, महबूब से दलील मांगी नहीं जाती। हम ये नहीं देखा करते कि जिब्रील आपके पास आए थे कि नहीं आए थे, हम ये देखा करते हैं कि आपने काम किया था कि नहीं किया था। जो आप काम करते हैं हम कर गुजरते हैं, जो काम आपको अच्छा नहीं लगता आपके यारों को भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी रिवायत सुनिए, सुनन नबी दाऊद की है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह इस हदीस को सही कहते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा जूते पहन के नमाज पढ़ाई, सहाबा ने भी जूते पहन लिए। फलम्मा रआ ज़ालिकल कौम, हाँ आपने दुराने नमाज जूता उतारा, साइड पे रख दिया। फलम्मा रआ ज़ालिकल कौम अलकौ निआलहुम, सहाबा ने देखा
दौरान नमाज उन्होंने भी जूते उतार के पैक डाले। नमाज से फारिग हुए, आपने कहा ओ मेरे सयानबा, आतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने बताया अन्ना फीहा क़दरुन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जूते को गंदगी लगी है, मैंने इसलिए उतारा, तुमने क्यों उतारा? फिर वही जवाब, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुद दलील होते हैं, महबूब से दलील मांगी नहीं जाती। हम ये नहीं देखा करते कि जिब्रील आए थे कि नहीं आए थे, हम तो ये देखते हैं कि आपने किया है कि नहीं किया। जो काम आप करते हैं हम कर गुजरते हैं, जो आप काम छोड़ देते हैं हम भी छोड़ देते हैं। ये अफ़ाल में दलील, अफ़ाल में मोहब्बत। अक़वाल में देखिए, आने वाला आया, उसने आगे कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसिनी, मुझे वसीयत कीजिए। आपने कहा मेरे सहाबी अगर वाकई वसीयत चाहता है फिर मेरा एक मैसेज है, एक पैगाम है, ला तसुब्बन्ना अहदन, कभी किसी को गाली ना देना। सहाबी रसूल है, आखिरी लम्हात हैं, दुनिया से जा रहे हैं, मौत का प्याला पी रहे हैं, मौत की कश्मकश में है। कहा लोगों सुनो सुनो सुनो, एक मरतबा महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा था कभी किसी को गाली ना देना। जब से सुना है उस वक्त से लेकर आज तक मौत के जाम पी रहा हूं। किसी इंसान को गाली देना तो दूर की बात है, लाशा तो वाला बही रहता, मैंने उसके बाद कभी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। मजा आ गया ना मोहब्बत का। ये है आका के साथ मोहब्बत, ये है प्यार, ये है अकीदत, ये है एहतराम। महबूब ने जो बोल बोले गए सारी जिंदगी उसकी रखवाली करना। आप आइए अपनी गिरबानों में झांकिए। शर्मिंदा नहीं करना चाहता, शर्मिंदा होना भी नहीं चाहता। मुझे और आपको 6 अमर के सीगे, 6 अमर के सीगे। अमर जब करीना साफा से खाली होता है वजूद पे दलालत करता है। आज लोग पूछती हैं ये सुन्नत है, सुन्नत नहीं है। ओफुल्लिहा वफिरुल्लिहा उतरुकुल्लिहा कफिरुल्लिहा वाफुल्लिहा। ओ मेरी उम्मत के नौजवानों, जब जवानी पे आपके चेहरे पे ये मुकद्दस बाल आ जाए, इसको ना छेड़ना, इनको ना मंडवाना, इनको ना कटवाना, इनको माफ कर देना, इनका इकराम करना, इनको बढ़ा देना। 6 अमर के सीगों की कैसी रोजाना मुखालफत करते हैं। सोचा कभी ये मुकद्दस बाल कहां जाते हैं? गंदी नालियों में और कूड़ा क्रिकेट की जगह पे। अगर ये काम गैर मुस्लिम करता, हमने रोड ब्लॉक करने थे, जुलूस निकालने थे, शटर डाउन करना था, टायरों को आग लगानी थी। महबूब अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है और तू रोजाना सुबह सुबह तौहीन करे और तुझे पता ना चले ये किस चीज की मोहब्बत है। डूब मरने का मकाम है, अभी भी तू नारे लगाता है आका की आमद मरहबा मरहबा, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। तू आका की सुन्नत पे अमल कर नहीं सकता, जान कुर्बान क्या करनी है? ऐ चश्मे अशकबार जरा देख तो सही, ऐ चश्मे अशकबार जरा देख तो सही, ये जो घर जल रहा है कहीं तेरा दर तो नहीं। अपने ही मन में डूब के बाजा सुरा की जिंदगी। और मेरे मोहतरम, मैं बता रहा था जो लोग वालिदैन का इकराम नहीं करते थे, आइए पैगंबर इनकिलाब ने कैसा इनकिलाब बर्पा किया, कैसी तरबियत की, वो जानवरों का भी इकराम करने लग गए हैं। सहीह बुखारी की हदीस है, जनाब अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम हज के लिए जा रही है। एक शख्स बड़े अदब से ऊँटनी की मुहार को पकड़ के आगे आगे चल रहा है। आपने फरमाया इरकब है, भाई इस पे सवार हो जो।
कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी का ऊंट है, कुर्बानी के ऊंट का अदब कर रहा हूँ। आपकी आमद से पहले बेटा बाप को शूट करता था, भाई भाई के गिरेबान को पकड़ता था, कैसा इनकिलाब बर्पा किया, कैसी तरबियत की कि सहाबा जानवरों का भी इकराम करने लग गए थे। ये था अदब, ये थी तरबियत। इमाम मालिक रहमतुल्लाह को देखिए, मदीनातुर रसूल में सारी जिंदगी कभी जूता नहीं पहना था कि कहा यहाँ पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम चलते रहे हैं। मालिक में जुर्रत कैसी कि मदीने की गलियों में जूता पहन ले। यही पे बात नहीं, आगे बढ़िए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह हदीस में सबसे पहली किताब लिखने वाले इमाम मालिक है, मुवत्ता इमाम मालिक। रूए जमीन पे सबसे पहली किताब। अदब इतना, इकराम इतना। एक दिन हदीस का लेक्चर दे रहे हैं, सबक पढ़ा रहे हैं, चेहरे का रंग बदल रहा है, आसार बदल रहे हैं। हदीस का लेक्चर खत्म हुआ, सबक खत्म हुए, शागिर्द आया, कहा उस्ताद जी खैरियत तो है, आपके चेहरे के आसार बदल रहे थे, तबीयत ठीक है? कहा बेटा इधर आओ, कपड़ा हटाओ। शागिर्द ने कपड़ा कमर से हटाया, बिच्छू ने 16 या 17 डग मारे हुए थे। कहा उस्ताद जी जब पहला डंग मारा तो तब क्यों नहीं बताया? कहा मालिक हदीस पढ़ा रहा था, आका की हदीस का अदब यह था कि मालिक में हरकत करने की हिम्मत नहीं थी। खुद नाते राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। खालिक व मालिक से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको हकीकी मानों में आका के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आका के हाथों से हौज़ कौसर के जाम नसीब फरमाए। जब तक जिंदा रखे अकीदा तौहीद पे रखे, आखिरी वक्त कलमा तौहीद नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल जलील व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।